Good afternoon, everyone. Today, we all are gathered here to participate in the fourth session of Check-in for Cognition with Dean, that is CCD. This is an initiative by the DME Media School where every week one or two topics of contemporary issues are discussed by the Dean with the faculty members to enhance our teaching learning experience. The topic for today's session is reservation in India. This is in the backdrop of scrapping of 4% reservation for Muslims in Karnataka. Recently, the government of Karnataka has scrapped a 30-year-old reservation for Muslims in the state, after which a writ petition was filed in the Supreme Court, and now the Supreme Court has asked for a reply from the state government. I would now like to request Professor Dr. Amrish Saxena to take the session further. Okay, so the reservation policy, it's a very complex issue, very controversial issue, but I will make it easy. When we say reservation, so the obvious meaning is reserving certain seats in admissions in schools and colleges, and giving appointments to the reserved category people in the jobs of the state governments and central government, right. The provision was made in the constitution itself for the elevation of communities which were socially backward, right. So, there are certain words which are very complex and wherein different interpretations are made of this provision. One is whether this reservation is available to communities or caste. Even today when this whole Karnataka controversy has happened, in all the debates in television channels, somebody is explaining that it is only for the caste, other is saying that it is for communities. So, when it is for the communities, everybody can be accommodated in this. So, this is one issue. Another issue is that when we say that it is for the socially backward people. Now, backwardness is to be counted on the ground of social status or on the ground of economic status, right. In a way, both are intermingled in the sense that if a person is economically well off, then even if he or she belongs to a lower strata of society or a lower caste, then he or she gets respect. When we say social, then within the social status, legally also, within the social status, the financial status and the social recognition, both are included, like in different kind of laws, like if I give the example of defamation, which we have discussed earlier also. So, if there is a case in the court, the person who is aggrieved and who files a petition in the court will decide, particularly in the civil cases, the court will decide the compensation and everything based on the social status, and the court will ask the petitioner to submit his or her economic status, like what kind of job he or she is into, how much earning is done, how much return is being filed, and all these things. So, social and economical, they go hand in hand. But then the question arises whether it has to be alone on the basis of the social status or social recognition of that person or that caste or community, or it is only on the basis of the economic considerations. So, these are the issues wherein there is a lot of controversy, has always been the controversy. Now, one major thing that happened immediately after independence, the reservation was for the scheduled caste in the scheduled tribes, and the lists were compiled by respective state governments and also by the center. Now, this is another area of controversy. There might be a person belonging to a caste which is in the scheduled caste in a particular state,
the same caste may not be considered under scheduled caste in another state. So, there is a difference in the list between one state and another state. Similarly, the same caste can be in one state, but that caste is not included in the list of the center. Now, reservations are given separately. Each state is reserving the seats or the admission for admission in the institutions or in the employment at the state level. Center will apply it in the central services. So, this is another major area, meaning thereby not only the lower level of jobs, even the top level, like if reservation is done by the center on the basis of the central list, now that reservation will be applicable even in IAS, whereas in the state level that will be applicable to state level civil services or the police services like PCS. So, all these problems are there. Lot of time this happens. Now, how these lists are made, that is another interesting area. These lists are made not once for all, these lists keep on changing. These keep on changing means new caste can be added to those lists, some caste can be dropped in the list, or any caste can be subcategorized. This has also happened in many states. So, any one caste is further divided into certain castes, like if we take the example of Bihar. बिहार में जो उनका बैकवर्ड है उसमें उन्होंने एक और कैटेगरी क्रिएट कर दी विच इज अति पिछड़ा, पिछड़ा और अति पिछड़ा। सिमिलरली उन्होंने शेड्यूल कास्ट में एक और कैटेगरी क्रिएट कर दी जो शेड्यूल कास्ट में भी और लोअर कास्ट है उनकी एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट कर दी। तो अब उसमें क्या होता है, क्या जैसे बिहार का ही अगर एग्जांपल लें तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे करती है, सपोज अगर शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन, इट्स कॉमन स्टेट और सेंटर में 15% रिजर्वेशन सर्विसेज में भी और मोस्ट ऑफ द एजुकेशन 15% है। अब सपोज उस शेड्यूल कास्ट में सपोज 50 कास्ट है तो वो ऑल 50 कास्ट आर एलिजिबल फॉर दैट 15% रिजर्वेशन एंड देयर इज नो सब कैटेगरीज इन द सेंस, ये नहीं होगा कि उस 50 में कास्ट नंबर ए को 5% मिलेगा, कास्ट नंबर बी को 8% मिलेगा, वो डिवीज़न नहीं होता था कन्वेंशनली, बट नाउ दैट हैज़ हैपेंड इन द केस ऑफ बिहार इन मैनी अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने 50 कास्ट में ये देखा कि ये 10 हैं, ये सबसे नीचे की, तो वो उस 15 में से उन्होंने 5% उनका फिक्स कर दिया, तो वो 10 का तो 5% में आ गई और जो बाकी 40 बची वो बाकी 10% में आ गई। सो दिस इज रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन एंड इवन दिस हैज हैपेंड। Now, another complex area is reservation on the basis of religion. Under Indian constitution, there can be no reservation on the basis of religion. Why? Because India is a secular state, which we have mentioned in the preamble. So, any such act which is being done on the basis of religion, that will not be acceptable under the constitution, right? Now, what has happened over these years? Many states started giving reservation on the basis of religion. As far as I remember, the first state doing this was Andhra Pradesh. That was challenged in the Supreme Court and Supreme Court held it null and void. So, that was not permitted. Now, afterwards what other states are started doing, Andhra further did it after the Supreme Court judgment, then Karnataka's controversy is already there. So, what was done, that within the Muslim religion, it was tried to further demarcate as to who are the caste which are backward in among Muslims. Now, here again another problem arises. Whether caste system is there among Muslims or not, there is a question mark on this. Normally, it is believed that caste system exists only among Hindus,
But then another concept came that the same caste system exists in Muslims as well. Why? Because ultimately, whether there are Muslims or Christians or whichever religion, before that, since Hindu used to be the initial religion, so everybody converted from Hindus to Muslims. तो एक यादव कन्वर्ट हुआ तो वो मुसलमानों में भी वो यादव हो गया, या एक अंसारी है जो वहाँ मान लीजिए कोई यादव है वो अंसारी हो गया तो यादव यहाँ भी ओबीसी में आएगा, अंसारी हो गया तो वहाँ भी वो ओबीसी में आएगा मुस्लिम होने के बाद भी. नाउ एंड दिस इज़ ए ट्रूथ. But then how to decide it? There are complex controversial opinions on this. So what Andhra, Karnataka and many other states, I cannot name all that you have find yourself. What these states is starting doing, they started giving reservation to the backward classes among Muslims, and reservation was given on the basis of the backwardness, not on the basis of religion. So obviously then that whole logic that reservation cannot be done on the basis of religion, this does not stand. But then further what happened if we look into the case of Karnataka only. In the case of Karnataka, since there are in the population of Karnataka there are 12% Muslims, like almost the same. I think in UP there is much more, almost 18 to 20%. So Karnataka they are 12%. Now how to decide the backwardness? Now there have been, this is very important, how to decide backwardness. For this almost all states and the center, they keep on constituting committees to decide based on their research and all as to which communities are at what level. Like education का आप कर सकते हैं, आप पर कैपिटा इनकम का कर सकते हैं इन ए सर्टेन कम्युनिटी, उनके ऑक्यूपेशन पे, उनका बिजनेस, उनका ये सब. सो ऑन दैट क्राइटेरिया देयर आर डिफरेंट कमिटीज़ और कमीशंस फॉर्म्ड. They conduct a study, give their report. Based on that report, if the government accepts the entire report or the government accepts such kind of reports with certain modifications and all, and then the reservation is applied and certain caste is included or excluded in certain categories. That is what is done. Now, in the case of Karnataka, even before the independence, many committees and commissions were formed to study the backwardness among Muslims, and I think at least 4 or 5 commissions have been made till date, time to time, and based on their recommendations in 1990s this whole reservation started for the backward communities among Muslims. So it is almost 25-30 years since the time this reservation started in Karnataka. Now, what happened about few years back, the 4% reservation was given to Muslims, and that was for backward classes among Muslims. Now, what this government did, why this whole controversy arose? Because this government wanted to polarize before the elections. So, what they did, earlier this same government was giving this 4% reservation to Muslims, but they decided as a strategy to scrap this reservation so that a message goes to Hindus that this government is not going to accommodate Muslims. So, the polarization will happen. So, they scrapped all 4%, and interestingly, since Vokalingas or Lingayats, these are the 2 most dominant agriculture based communities in Karnataka, and if you can try to understand what kind of communities are they in north, so these are the communities like Bhumiyars in UP and Bihar, or Tyagis in western UP, I mean those who depend on agriculture and land. Now, they are a big force as far as not only in numbers, but as far as their influence is concerned, they determine elections in Karnataka. तो 4% जो लिया वापस, तो इनको 2-2% रिजर्वेशन दे दिया, तो ये गेम था कि इनको पैसिफाई कर देंगे तो इनका वोट आसानी से मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज उस वोट का जो मेजर चंक है वो जेडीएस में और कांग्रेस में जा रहा था.
उसको चेक करने की कोशिश की, और मुस्लिम्स को तो उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, उन्हें मालूम है कि मुस्लिम का वोट मिलना भी नहीं है, तो पोलराइज करके हम आसानी से इलेक्शन निकाल सकते हैं। They had this formula in their mind that 80 versus 20, and it proved successful in UP election. And then they determined that even we have the 20% votes of Muslims, it is further segregated. It does not go to 1%. They have succeeded, as Iram is saying. यूपी में consecutively 2 assembly elections में बीजेपी did not contest a single Muslim candidate, खड़ा ही नहीं किया। और same they have done in Karnataka, they have not fielded any Muslim candidate. तो उन्हें मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करना, मुस्लिम वोट भी नहीं चाहिए। सो बहुत एक क्लियर कट पोलराइजेशन के लिए, सो दे यूज इज एज अ इलेक्शन स्ट्रेटजी। एंड फर्दर यू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट ऑफ दिस। मैं थोड़े सारे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट जिनका आंसर शुरू में गरिमा भी ढूंढ रही थी, तो मैं सारे क्लियर करता जा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, सारी सरकारें क्या करती हैं, और जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी किया, दे नो कि रिलीजन के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट बार बार जब जब कोई गवर्नमेंट देती है वो उसको स्क्रैप कर देती है। फिर भी सरकारें देती है, वो इसीलिए देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप कर दे। तो नाउ दिस होल गेम, पॉलिटिक्स वर्सेस लॉ, इनको मालूम था कि ये चैलेंज होगा, ऑब्वियस था चैलेंज होगा, और इनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट रोक लेगा, बट द मैसेज हैज गॉन। इन्होंने बीजेपी हैज गिवन द मैसेज टू वोकालिंगा और लिंगायत कि वी वांट टू गिव यू रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउइंग अस, बट एज सून एज वी विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट वी विल मैनेज टू गिव यू दैट, गिव मी द वोट। तो ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, फिर भी देते हैं रिजर्वेशन। सो दिस होल गेम नाउ then again there is another area of this reservation which is most crucial, most crucial, which nobody ever looks at, which nobody debates. Reservation is given on the basic premise that there are certain communities, certain castes which are backward socially, educationally and otherwise. And why they are backward? Because they were deprived opportunities for centuries. So for level playing, it is important that those people who have been suppressed, who have been backward, they should be given some impetus, some extra push, some more opportunities, so that they come equal to the communities which are on the upper estate. तो नीचे के लोगों को पुश करना है by giving them reservations, so that more level playing ground can be created. That's the basic premise of reservation. Now how do you decide कि जो हमने एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ देनी है किसी भी सरकार को, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देने पे लेवल प्लेइंग हो जाएगी, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है। और कितने साल तक, जो बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, कितने साल तक देने के बाद लेवल प्लेइंग हो जाएगी, इसका भी कोई स्टडी नहीं है, कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। अच्छा, वो हो जाएगी जब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी और लेवल प्लेइंग हो गई, तो अगर उसके बाद अगर रिजर्वेशन बंद कर दिया किसी सर्टेन कास्ट या कम्युनिटी का, तो ऐसा तो नहीं है कि जो 50 साल में अचीव किया था वो 20 साल में फिर पीछे चले जाएंगे। तो हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा पुश चाहिए, जो लेवल प्लेइंग जो आज क्रिएट किया गया वो आगे भी चलता रहे। इसको लेके भी कोई बात नहीं है, कोई स्टडीज़ नहीं है कि ये कितने समय के बाद क्या स्थिति होगी। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्स एरियाज, प्रॉब्लम एरियाज, राइट। नाउ देयर इज़ अनदर एरिया जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया, दो सबसे कंटेंशियस इश्यूज़, और उसके बाद इंदिरा साहनी के केस में आया। मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। उससे पहले सिर्फ 22.5% रिजर्वेशन था, 15% शेड्यूल कास्ट का और 7.5% शेड्यूल ट्राइब का। कुछ स्टेट में इसके अंदर ही थोड़ा चेंजेस हैं, पहले भी थे आज भी हैं। जैसे जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर ट्राइबल्स नहीं है, तो
तो यहाँ पे 7.5% ट्राइबल रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है. सो व्हाट द गवर्नमेंट डज ऑफ एंड ऑन, वो 7.5% में 2.5%, 5% वो शेड्यूल कास्ट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि है ही नहीं शेड्यूल ट्राइब. इसका रिवर्स नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी इज इन लार्ज नंबर, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट वाला थोड़ा परसेंटेज उठा के ट्राइब वाले में जोड़ देते हैं. तो ये स्टेट लेवल पे ऑल दीज थिंग्स आर परमिसेबल, होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन हुआ, सो दिस वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. सो इट वाज अ फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which decided that the overall reservation cannot exceed 50%. So this means in a way the reservation for OBC decided at 27%. 90, ठीक. तो ये it was decided 27%, क्योंकि 15 प्लस 7.5, 22.5, 50 से ऊपर नहीं हो सकता. 50 में 22.5 घटाओ तो बचा 27.5, तो हाफ निकाल दिया. 27% फॉर ओबीसी, इसलिए 27 की फिगर आई. 20% फॉर ओबीसी, ठीक है. नाउ there was another complex area which was decided by the Supreme Court in Indira Sahani case again. It was decided that reservation for OBC communities will be given by applying the criteria of creamy layer. ठीक है. क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि जो लोग रिजर्वेशन के मिलने के बाद दे हैव क्रॉस दैट स्टेटस. अगेन रिजर्वेशन है सोशल बैकवर्डनेस पे, क्रीमी लेयर है फाइनेंशियल बेसिस पे. तो उस क्रीमी लेयर से ये फ़ायदा हुआ कि जिसको एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया और जो बैकवर्डनेस से बाहर निकल गया तो फिर उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है. ये बेसिक उसके पीछे कॉन्सेप्ट. नाउ अब मैं बिल्कुल असली मुद्दे पे आता हूँ. असली मुद्दा ये है कि रिजर्वेशन देने की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज एंड मोर टेकर्स. ठीक है. ये किसी भी डिबेट में आपने इस मुद्दे पे बात नहीं की, सुनी होगी किसी पैनलिस्ट को बात करते हुए. देयर आर, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आईपी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन होना है, अगर सपोज 5,000 सीटें हैं, 3,000 एप्लीकेंट हैं, everybody will get the admission. Why to give the reservation? Reservation or no reservation, जो BJMC में हो रहा है. रिजर्वेशन है लागू, लेकिन रिजर्वेशन हैज बिकम मीनिंगलेस. देयर आर लेस एप्लीकेंट्स, मोर सीट्स. सो रिजर्वेशन इज यूजलेस, नॉट रिक्वायर्ड. Reservation is required whenever there are less opportunities, less number of jobs, less schools, less colleges, less seats. Then the reservation is required. On one hand, reservation should have been continued, which is continuing, so that people are given more opportunities. At the same time, efforts should have been done to create more opportunities, so that the gap between the vacancies, between the availability of seats and the applicants, that reduces or that comes at a same level. Then there would have a time would have come, then there would have been no requirement of reservation. 80 लोग जॉब लेने वाले हैं, 100 जॉब्स हैं, सभी को मिल जाएगा, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ख़त्म होगी. नहीं, 100%, it's 100% possible. It's 100% possible. Creating opportunities is not impossible. But what has happened? I am giving you very correct. अभी चेक करना, अभी डेटा चेक कर लेना, बाद में करना हो मैं बाद में डेटा चेक कर लें. जो तुम कह रही हो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट. The government jobs, instead of increased opportunity, what has happened since 1990? Since 1990, more than 30 years have happened. 1990 में इसलिए कह रहा हूँ, 91 economic liberalization started. So take that year as a benchmark. From that time till date, in almost all jobs, central and state, most of the jobs rather I should say, most of the jobs, number of openings have come down. Whereas
efforts should have been to increase the jobs. Jobs have reduced. रफली इसको ऐसे समझ लो, अगर आज से 30 साल पहले किसी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट के 100 वैकेंसीज अवेलेबल थी, तो आज 40 या 50 वैकेंसीज अवेलेबल हैं अक्रॉस लगभग यही। अगर ये 100 से 150 या 200 हो गई होती, रिजर्वेशन कोई मांगता ही नहीं क्योंकि सबको नौकरी मिलती, तो नौकरी बढ़ने की बजाय घटती चली गई और लेने वाले बढ़ते चले गए, तो जो गैप था वो ब्रिज होने की बजाय बढ़ता चला गया। और सर टीचर भी बदल गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल रखते हैं। टीचर की नहीं, मैं अक्रॉस कह रहा हूँ। सर टीचर बदल सर इसमें मेरा एक वो एक अलग एस्पेक्ट, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट की नेचर की बात है। एम्प्लॉयमेंट तो हो। सर सर मेरा इसमें एक प्रश्न है। फॉर एग्जांपल दूरदर्शन, पहले जब रिजर्वेशन या कास्ट में देखते तो एक कैमरामैन जब एक शूट पर जाते थे 5 लोग जाते थे, कैमरामैन, कैमरा असिस्टेंट, नहीं ये इस 5 लोग थे। अब नंबर ऑफ वैकेंसी थी, लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद वो 2 लोग। ये अनफाउंडेड, दिस इज अनफाउंडेड। ये आर्गुमेंट ये इसके लिए नहीं, आगे के लिए, हर समय के लिए, हर चीज़ के लिए समझ लीजिए। इस आधार, टेक्नोलॉजी के आने के आधार पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती, बढ़ती। नेचर ऑफ जॉब्स चेंज, जॉब्स का नेचर बदल जाता है, जॉब्स कभी नहीं कम होते। प्रिंट मीडिया में पहले प्रूफ रीडर हुआ करते थे, अब नहीं है। पहले वो पेस्टर हुआ करते थे, अब नहीं है। लेकिन जॉब्स थोड़े कम हो गए, जॉब्स कभी कम नहीं होते। टेक्नोलॉजी हमेशा जॉब्स क्रिएट करती है, कम नहीं करती। तो ये पूरी तरह से मिसकंसेप्शन है कि टेक्नोलॉजी के आने से जॉब्स कम होते हैं। 1980 में मेरे जैसे लोग भी सोचते थे टेक्नोलॉजी आने से जॉब कम हो जाएंगे, तो मैं भी कंप्यूटर विरोधी आंदोलन में शामिल था। मुझे लगा कंप्यूटर आया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इट वॉज सच ए फुलिश थिंग दैट आई वॉज थिंकिंग। नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद चीज़ें बदलती हैं, तो आपको अप स्किल करना पड़ेगा, नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जॉब्स कभी कम नहीं होंगे। सर लेकिन इसमें ये भी शामिल है कि जो वैकेंसीज खाली हैं लेकिन भरी नहीं जा रही हैं, जैसे इवन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स लॉट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव वैकेंसीज बट फिलिंग इज नॉट बीइंग डन। हाँ ठीक है, फिर वो बात आ जाती है कि वो वैकेंसीज आर देयर। उसका मैं बता देता हूँ, उसका जो वो, हाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज हम काउंट करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज आती है। हाँ। बहुत सारे प्राइवेट जगह पे वैकेंसीज बढ़ी है, लाइक इन सोशल मीडिया, लाइक इन डिजिटल मीडिया। मैं अभी छोटी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या काउंट कर रहे हैं, हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर। नहीं विशाल, नहीं मैं इसको ठीक कर, अरे नहीं मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, जो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, रिजर्वेशन पॉलिसी इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। रिजर्वेशन की पॉलिसी सरकारें सरकारी नौकरियों के लिए बनाती हैं, प्राइवेट सेक्टर से तो मतलब नहीं है यहाँ पे कोई। हाँ, हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो बात, ओवरऑल डेटा लेते हैं, हम जो इकट्ठा करते हैं कि इतनी बेरोजगारी आ गई, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की उठा रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब बढ़ रही है तो प्राइवेट सेक्टर। डेटा की मैं अभी यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर रहा, सबको पता है कि अब ओपनिंग्स कैसे कम होती हैं। जो इसने पूछा उसका भी जवाब देता हूँ। क्या होता है सरकार में, सरकारों में क्या होता है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल नहीं भरती है तो वो पोस्ट स्क्रैप हो जाती है। तो जो गेम है, जो सारी सरकारों में जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठ के करते हैं, वो पोस्ट को फिल नहीं करते जानबूझ के। तो अगर कहीं शेड्यूल कास्ट की पोस्ट है तो क्या करते हैं, जैसे एक पोस्ट थी IIMC में, और जब मैं वहाँ पे था वो 7 साल से भरी नहीं गई थी। तो मैंने कहा यार पोस्ट क्यों नहीं, एक पोस्ट थी तो क्यों नहीं भरी जाती। कहीं ठीक से पब्लिसाइज ही नहीं करते, एडवर्टाइज़ करते हैं, ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन ज़्यादा ना आए, और जो आती हैं फिर वो कमेटी बैठती है तो क्वालिफिकेशन पे इस पे उसको किनारे कर देती हैं स्ट्रेटेजिकली कि अगर ये नहीं भरी जाएगी तो या तो स्क्रैप हो जाएगी, तो एक शेड्यूल कास्ट आने से बच जाएगा डिपार्टमेंट में, क्योंकि बैक ऑफ माइंड तो वो ठीक नहीं हुआ ना, केवल रिजर्वेशन ही तो हुआ। और दूसरा ये कि अगर नहीं आएगी तो उसको बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है रिक्वेस्ट करता है मिनिस्ट्री से, उसको कन्वर्ट कर देते हैं जनरल में।
तो इसलिए जानबूझ के नहीं भरी जाती शेड्यूल कास्ट की पोस्ट। तो ये तो मतलब एक अलग ही एस्पेक्ट है सारे गेम का। तो क्या है कि पोस्ट कम होती जाती हैं लगातार, बहुत सारे। तो जो कम आप गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये सरकारी डेटा है कि सरकारी जॉब्स नहीं है, ख़त्म हो गए। और जो इसने कहा वो भी बात सही है कि अगर जॉब्स कम हुए, एक तो इरेगुलर जॉब्स, दूसरी तरफ अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई आ रहा है तो वहाँ वो रिजर्वेशन को उस तरह से लागू नहीं करते। तो रिजर्वेशन तो है, तो जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं उनको दिखता है कि अब क्यों रिजर्वेशन है, हम जनरल में हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअली रिजर्वेशन है नहीं, ग्राउंड पे है नहीं रिजर्वेशन जो होना चाहिए। लेकिन लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि देखो हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम हमें वोट दे दो। तो ये एक फॉल्स सारा नैरेटिव क्रिएट करके नौकरियां ही नहीं है तो नौकरी दोगे कहाँ से? नौकरी देने के लिए ज़रूरी है कि नौकरियां क्रिएट हों। तो कोई भी सरकार नौकरियां बढ़ाने पे तो ध्यान देती नहीं, रिजर्वेशन देने पे ध्यान देती है। जो चीज़ है नहीं उसको आप कमिट कर देती हैं सरकारें कि हम दे रहे हैं लोगों को, और लोग समझते हैं कि उनको मिल रही है, लेकिन जब चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मिलेगी कहाँ से? तो बात डिबेट होनी चाहिए रिजर्वेशन पर नहीं, डिबेट होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने पे। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने पे नहीं ध्यान है। क्या प्रॉब्लम है कि आप और 100 की जगह 150 कॉलेज नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है कि आप स्कूल जो एक गांव में है उसमें कितने गांव में तो स्कूल ही नहीं होते, हर गांव में एक, बड़े गांव में 2 या 3 स्कूल क्यों नहीं खोल सकते? तो जब आपके पास ज़्यादा स्कूल होंगे, ज़्यादा कॉलेज होंगे, ज़्यादा नौकरियां होंगी, रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं करेगा। तो जब रिजर्वेशन की बात कोई नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन किस आधार पर लड़ेंगी? So all these political parties, they conspire against the people by befooling them, by not providing them the opportunities, but by reducing the opportunities and then asking the people कि हम नौकरी दे देंगे, हमें वोट करोगे तो असली फाइट कहीं और है और वो कहीं और उसकी बात होती है। क्योंकि रिजर्वेशन इज समथिंग which the issue which can never be resolved. Why it cannot be resolved? Because India is a society which is divided into so many castes and subcastes, so many religions and all, and which is different at different places. And India is a society wherein people are very very sensitive on caste based issues. एक बहुत और एक बढ़िया सा नैरेटिव दिया जाता है कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं होना चाहिए, जो रिजर्वेशन के विरोधी लोग हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। यही प्रश्न मेरा अगला था। एक प्रश्न का तो आंसर आपने दे दिया, पोस्ट को छोड़ देते हैं 2% जो तो जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। अभी सर एक गर्म मुद्दा यही है कि बिहार की सरकार चाहती है कि इसको कास्ट बेस्ड आप कर ले। अगर नेशनल लेवल की पार्टीज में देखें, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का विरोध रहा है, कभी भी परोक्ष रूप से उन्होंने नहीं कहा कि इसको कास्ट बेस पे आप करें। फिर रिजर्वेशन दोगे कैसे? मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ। ये रहा जितनी भी रीजनल पार्टीज इनका जो एक मकसद रहा पॉलिटिकली गेन है, उसमें कुछ है नहीं कि भाई हम जातिवादी कर लेते हैं, पता लग जाता है कि किसमें कितना है। तो पहला प्रश्न ये कितना सही है, मेरा पहला है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा प्रश्न है कि मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में एक बिल लेकर आई थी जिसमें से उसने बाकी आरक्षण में से कितना सही हुआ 10% निकाला था। वो गलत है, सिंपल आर्गूमेंट है। वो अभी तक, अब उसमें दिक्कत क्या है, दैट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा भी नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अभी पोस्टें निकलती है, 10 सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा भी नहीं। ये दूसरी इशू है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। ये मैंने क्लास में भी एक दिन बात की थी। ये रिलेशनशिप जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, एक कहीं ना कहीं दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा हार्श लग सकता है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, तो चाहे इवन लेजिस्लेचर हो, ये सारा एक पूरा सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है। एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज in the hands of the powerful and rich people, and they give certain concessions, subsidies and ye sara to befool the people,
as a populist measures so that they can get the political gains. देखिए हाँ, डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसका पॉपुलिज्म है. आप जब तक डिस्पैरिटी रहेगी, जब तक आप स्कैरिसिटी क्रिएट करेंगे, 10 लोगों को खाना नहीं मिल रहा, 10 को मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा आप कहेंगे अरे नहीं मिल रहा, 2 साल फ्री खिलाते हैं, वो कहेगा देखो कितनी बढ़िया सरकार 2 साल से फ्री खाना खिला रही, लो वो बिना कहे वोट दे देगा. अब सबको खाना मिलेगा, फिर वो दिमाग लगाएगा कि ये इसको देना है कि उसको देना है, तो 10 को खाना मत दो तो वोट पक्का. लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है कि अगर चलो मेरिट में मार्क्स निकाल भी रहे हैं हर कैटेगरी के, हाउ मच डिफरेंस कैन बी देयर, लाइक अगर एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 190 में पास कर रहा है, हाउ कैन यू से कि सम मेरिट की बात सिर्फ अर्बन क्लास के लोग और उसमें भी अपर कास्ट के लोग करते हैं. बाकी मेरिट जो है ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है. आप एक गधे और घोड़े दोनों को दौड़ाओ, कहो जो जीतेगा उसी को इनाम देंगे, वो गधा कभी जीत ही नहीं पाएगा, घोड़ा ही जीतेगा हमेशा. क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू द एक्सटेंट, जो बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था, वेयर इन लेवल प्लेइंग इज क्रिएटेड. मेरिट की बाद लेवल प्लेइंग के बात होगी, पहले लेवल प्लेइंग तो हो. एक आदमी जिसके पास 100 करोड़ रुपए है वो भी चुनाव में खड़ा है और मैं भी खड़ा हूं जिसके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, वही जीतेगा ना, मैं कहां से जीतूंगा. हमने डेमोक्रेसी के नाम पे इतनी डिस्पैरिटी क्रिएट, हमें डिस्पैरिटी को ब्रिज करना है, बट इन ए वे वी आर क्रिएटिंग मोर डिस्पैरिटीज इन द सोसाइटी एंड we are creating such disparities that everybody thinks that there has to be some reservation, and then the political parties is there, okay, we are ready to give you the reservation, people are happy that we are getting the reservation, so वोट ले लो. हमारा सारी पॉलिटिक्स ही गलत डायरेक्शन में है. हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं करते, और जो क्रिएट करते हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं करते, अपॉइंटमेंट कर देते हैं. और हाँ, और अगर एग्ज़ाम लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तो 2 साल में रिजल्ट देते हैं, 4 बार नकल होने के आरोप में एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है. फिर हम हज़ार रुपए फीस लेते हैं जनरल और जिससे भी. सवाल ये नहीं है कि आपने 1000 फीस दी, सवाल ये है कि आपने 1000 की फीस दी, 3 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ आपके एप्लीकेशन भरने पे, और वो सरकार ने एक आदमी ने 1000 दी तो उनके पास 5 करोड़ रुपए जमा हो गया फीस का. 3 साल एग्जाम नहीं हुआ, उस 5 करोड़ पे 3 साल का इंटरेस्ट, क्या कोई बात करता है? वो आप नहीं दिखाई देता आपको. उसके बाद 5 साल के बाद एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद हो सकता है तब तक कोई ओवर एज हो गया तो इनएलिजिबल हो गया एग्जाम में देने के लिए, 1000 रुपये वापस नहीं मिलेगा उसको. माइंड इट, सरकार ने 3 साल एग्जाम नहीं दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुमने 1000 रुपये दिया, 3 साल में तुम्हारी एज निकल गई, तो अब तुम उसमें बैठ ही नहीं सकती. 1000 रुपये सरकार क्या वापस देगी? कभी नहीं देती. ठीक है, उसके बाद चलो अब एज के अंदर ये दूसरी प्रॉब्लम, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद 2 साल तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा. अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी. इसका रिजर्वेशन से कोई संबंध नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है सरकार का. राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इंटरकास्ट मैरिज का कुछ लॉ पास किया है, तो सर इससे रिजर्वेशन खत्म होगा या फिर क्या ये? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज is the only way out. I mean, this is what I think is the only way out to bring a change in this society. But this is very slow. इसमें अभी 100-200 साल लग जाएंगे चेंज आने में. तो ये एक अच्छा तरीका है चेंज लाने का, जिसमें कोई, लेकिन कोई भी सरकार इस चेंज को नहीं लाना चाहती. ये सोशली लेवल पे अपने आप होता है, कोई सरकार के कहने से नहीं होता, ये अपने आप होता है. जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, और अगर 100% एजुकेशन हो गई लड़कियों में तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो कास्ट से बाहर शादी करेंगी. नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल हो गई. तो जब ये हो जाएगा तो अपने आप ही समाज बदलेगा. इसीलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ें, वो लड़कियां पढ़ें, ये तो कोई भी नहीं चाहता. ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि देखो हमने राष्ट्रपति बना दिया, उससे क्या होने वाला, राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन उससे क्या ग्राउंड पे कोई चेंज आया? ग्राउंड पे तो चेंज आया नहीं. आपको ग्राउंड से ठीक करना है.
जहां आपके बनाने पे कोई निर्भर नहीं है, अपने आप राइज करके वहां तक जाएगा। अभी तो आप बनाते हैं ना हैंड पिक्ड, इस पोस्ट पे शेड्यूल कास्ट बिठा देते हैं, इस पे मुस्लिम, दिखाना है ना लोगों को ये, लेकिन बना कौन रहा है? बना तो वो अपर कास्ट का आदमी बैठा हुआ ऊपर बना रहा है ना, उसको बनाने का चांस नहीं होना चाहिए। नीचे का तबका इस तरह से राइज करे कि वो ऑटोमेटिकली उन पोजीशंस पे आ जाए, किसी की मर्जी पे ना आए। अभी तो लोगों की मर्जी पे है ना कि भाई किसी को बनना है तो वो चाहेंगे तो आप बन जाएंगे। तो वो सोशल चेंज लाना है, तो उसके लिए बहुत समझदार पॉलिटिशियन, बहुत अलग तरह की गवर्नेंस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस तरह की पार्टीज, उस तरह की गवर्नेंस हमारे यहाँ है नहीं, और चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान हो जाता है। इतनी गहराई में कोई डिमांड करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओ। प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन को आप लागू करा सकते हैं। कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने किया भी है, अगर आपको पता हो तो, लेकिन सरकार अभी तक अफर्मेटिव एक्शन को लेके कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। कोई समझता है अफर्मेटिव एक्शन? नहीं। अफर्मेटिव एक्शन ये है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि सरकारी नौकरियों में तो रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन वहाँ नौकरियाँ नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू नहीं होता, जबकि वहाँ नौकरियाँ, यही सवाल उठाया गया था ना। तो जहाँ नौकरियाँ हैं वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, अब सरकार कर नहीं सकती। तो ये बहुत समय से बात चल रही है कि सरकार एक पॉलिसी लेके आए जिसको अफर्मेटिव एक्शन का नाम दिया गया है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपने यहाँ भी रिजर्वेशन दें। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ करती हैं, अभी मुझे नाम नहीं ले सकता इंस्टेंटली में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने इन हाउस पॉलिसी बनाई हुई है। हाँ, इन हाउस पॉलिसी बनाई हुई है, वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन सरकार ने कभी अफर्मेटिव एक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। Thank you, sir, for sharing such lesser known facts and details into the topic of reservation in India. This will indeed help us to deliver this knowledge to our students in the media education. In the next session, we'll again come up with a new topic of contemporary issues, and I would now like to thank all of you for participating in this session. Thank you.